میں ایک امیر گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے کا کام کرتی تھی۔ ایک دن مالکن کے بیٹے نے میرے میلے کپڑے دیکھ کر مجھے دھکا دے دیا اور گھرنا سے کہا، تم غریب لوگ گندے ہوتے ہو۔ کچھ سمے بعد اسی بیٹے کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے ایک دردلبھ بلڈ گروپ کی آوشکتا پڑی۔ جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا خون کیول مجھ سے ہی میل کھاتا ہے تو وہی مالکن میرے پیروں میں گر کر رونے لگی۔ لیکن خون دینے سے پہلے میں نے انہیں وہ راز بتایا کہ یہ لڑکا دراصل وہ عورت میرے قدموں پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اس پل میرے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو میں اس کی بات مان لیتی یا پھر اپنی شرط منواتی۔ دونوں ہی استھتیوں میں جیت میری تھی، لیکن اس سے پہلے جو اپمان اور ہار میں نے دیکھی تھی، اس کے بعد یہ جیت بھی مجھے جیت جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے اپنا وہ راز بتایا تو اس نے ایسا نرنے لیا جس نے ہم سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ عورت کون تھی، میں کون ہوں اور وہ فیصلہ کیا تھا، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ انت میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب میں اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا نام میگھا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے پتا کون تھے۔ بچپن کی دھندلی یادوں میں بس اتنا ہی ہے کہ کبھی میرے بھی ایک پتا تھے، لیکن جب مجھے سمجھ آئی تب تک وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو صفائی کا کام کرتی تھی۔ وہی میری دنیا تھی اور وہی میری طاقت۔ جب میری ماں بیمار پڑی تو اس کی جگہ میں کام پر جانے لگی۔ میں عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے سمے سے پہلے ہی بڑا بنا دیا۔ ماں کی بیماری زیادہ دن نہیں چلی۔ 1 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ماں کے جانے کے بعد میں اسی بنگلے میں کام کرنے لگی جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام ابھے تھا۔ میں اسے عیاش کہتی ہوں کیونکہ وہ سچ مچ ویسا ہی تھا۔ سب سے زیادہ گندگی اسی کے کمرے سے نکلتی تھی۔ جب گھر کے لوگ سو جاتے تب وہ جاگتا۔ رات میں پارٹیاں ہوتی، اس کے دوست آتے اور پورا گھر شور سے بھر جاتا۔ دن بھر اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی ماں خود اس کے ویوہار سے پریشان رہتی تھی۔ اس کا پتا شاید کسی دوسرے دیش میں رہتا تھا جو وہاں سے پیسے بھیجتا رہتا۔ ماں بیٹا دونوں وہی پیسہ اڑا رہے تھے۔ انہیں غریبوں سے نفرت تھی۔ اس گھر میں کام کرتے ہوئے مجھے اکثر احساس ہوتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ بھی شاید یہی ویوہار کیا جاتا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ سوچ مجھے بھیتر سے توڑ دیتی تھی۔ ماں کے بعد میں کوارٹر میں رہنے لگی۔ نہ دن کا ہوش رہتا تھا نہ رات کا، بس میرے کان کے پاس لگی گھنٹی بجا دی جاتی تھی۔ آدھی رات کو جگا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ پیزا بنا دو یا مہمان آ گئے ہیں، کچھ پکا دو۔ وہ ساری رات جاگتے اور پورا دن سوتے تھے، جبکہ میں ساری رات بھی جاگتی اور پورا دن کام کرتی تھی۔ میں بہت تنگ اور پریشان تھی، لیکن شاید اب یہی میری زندگی تھی۔ اس گھر میں ابھے نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جس نے سچ میں سب کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا تھا اور اس کا اندازہ صرف اس کی باتوں سے ہی نہیں بلکہ اس کے روزمرہ کے کاموں سے بھی ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ فون پر کسی لڑکی سے چیخ چلا کر بات کرتا اور کبھی ہنستے ہوئے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ اکثر رات کو اس کے کمرے سے ہنسی اور شور کی آوازیں آتی۔ جب میں صبح اس کے کمرے میں صفائی کرنے جاتی تو بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر سمجھ جاتی کہ رات بھر وہاں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے ایک بہت مہنگا موبائل دلایا جو دیکھنے میں ہی قیمتی لگتا تھا۔ اسی دن کسی بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے وہ موبائل زور سے زمین پر دے مارا جسے وہ ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں نے سخت لہجے میں کہا کہ جس دن تم اپنے پیسوں سے موبائل خریدو گے اس دن سے اسے زمین پر نہیں پھینکو گے۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ اسے کسی پر غصہ آ گیا تھا اور اس کے چہرے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کے سمے ایک لڑکی روتی ہوئی اس کے گھر کے گیٹ تک آ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھے نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اس سمے ابھے گھر میں ہی موجود تھا۔ اس کی ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہم نے اس کی شادی کہیں نہیں کرنی، اور اگر اس نے کوئی وعدہ کیا تھا تو تم خود یہاں کیوں آ گئی؟ وہ لڑکی کچھ دیر روتی رہی اور پھر چپ چاپ واپس چلی گئی۔
2 हफ्ते बाद खबर आई कि वही लड़की मर चुकी है। किसी को नहीं पता था कि उसकी मौत की वजह क्या थी, और क्या सच में अभय ही उसकी मौत का कारण बना। कुछ दिनों बाद उस लड़की के माँ बाप इस घर में आ गए। उन्होंने खूब हंगामा किया और रो रो कर अपनी बेटी का जिक्र किया। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया गया। बड़ी मालकिन ने अभय को डांटा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, जैसे इस सब से उसका कोई लेना देना ही न हो। इस घटना के बाद भी अभय के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और वो पहले जैसा ही रहा। वो मुझे भी अजीब नजरों से देखने लगा। कभी बेवजह गुस्सा करता और कभी जानबूझकर सख्त लहजे में बात करता। मुझे उससे डर लगता था और उसकी मौजूदगी में मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं इस घर में मजबूरी के कारण रह रही थी। काम करना मेरी जरूरत थी, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी थी। यहाँ मुझे तनख्वाह भी मिल जाती थी और सिर पर छत भी थी। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर यह घर छोड़ दूं तो न जाने नया घर और नए लोग कैसे होंगे। बड़ी मालकिन की जुबान कड़वी जरूर थी, लेकिन वो पूरी तरह जालिम नहीं थी। कभी कभी वो हालात को समझ भी लेती थी, और शायद यही बात मुझे इस घर में रोके हुए थी। एक दिन मैं पोछा लगा रही थी और अपने काम में व्यस्त थी कि अभय पास से गुजरा। उसी समय मेरा गंदा पोछा उसके पैर से छू गया। मुझे क्या पता था कि उसने बहुत महंगे जूते पहन रखे हैं। वो गुस्से में मुझे घूरते हुए बोला कि तुम गरीब और गंदी लड़की हो, तुम्हारी वजह से मेरे जूते खराब हो गए। उसने कहा कि ये जूते तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा की कीमत के हैं, और मुझे वहां से दफा हो जाने को कहा। उसके शब्दों में नफरत थी और लहजे में अपमान। यह कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। गिरते समय ज्यादा चोट हड्डियों पर ही लगती है। मेरा बाजू जमीन से टकराया और कोहनी पर गहरी चोट आ गई। दर्द इतना था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अभय बिना रुके वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह सब बड़ी मालकी ने देख लिया था। उसके जाने के बाद वो मेरे पास आई और बोली कि यहीं बैठो और बाजू पर दवा लगा लो। फिर डांटते हुए कहा कि इस समय पोछा क्यों लगा रही थी, क्या यही सफाई करने का वक्त है? मैंने तो तुम्हें सुबह सफाई करने को कहा था। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और उलझन भी। मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा कि गलती भी खुद करती हो और रोती भी खुद हो। मैंने रोते हुए बताया कि सुबह आपने ही कहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए कबाब बनाने हैं। आपको मशीन से पिसा मसाला पसंद नहीं, इसलिए मैं सुबह से हाथ से मसाला पीस रही थी और उसी में 2 घंटे लग गए, इसीलिए सफाई का काम देर से शुरू हुआ। वही बड़ी मालकिन कुछ देर सोचती रही, फिर बोले कि हाँ, अब याद आया, मैंने ही तुम्हें उस काम में लगा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो, अब मेरा बेटा मेरे बस में नहीं रहा। उसने मुझे अपमानित कर रखा है। तुम तो इस घर की नौकर हो, वो तुम्हें 2-4 बातें सुना ही सकता है। उनके शब्दों में थोड़ा एहसास था, लेकिन उससे ज्यादा बेबसी। मैंने बाजू पर दवा लगवाई और फिर दोबारा काम में लग गई, क्योंकि शाम तक मेहमान आ चुके थे। खाना पीना चलता रहा और बर्तन बहुत ज्यादा हो गए। रात को थककर मैं अपने बिस्तर पर लेटी और रोने लगी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या किसी का बचपन का सपना होता है कि वो बड़ा होकर नौकर या नौकरानी बने? कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मेरी जिंदगी शायद यही बनकर रह गई थी। अभय मेरी ओर देखता तक नहीं था। मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि कभी उससे मुझे कोई खतरा हो सकता है। वो अपने कमरे में सो रहा था। सुबह का समय था और बड़ी मालकिन ने कहा था कि आज पूरे घर की सफाई करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अभय का कमरा सबसे ज्यादा गंदा रहता था और अब सिर्फ वही कमरा बचा था। अब मैं क्या करूं? एक दिन यूं ही मैंने उसका कमरा छोड़ दिया था। इस पर बड़ी मालकिन ने मुझसे कहा था कि वो सो रहा था तो उसे सोने देती, तुम अपना काम कर लेती। हम अमीरों के घरों में सफाई होती ही कितनी है, कौन सी तुम्हें दीवारें मांजनी थी? घर तो वैसे ही साफ सुथरा रहता है, बस झाड़ू पोछा ही तो लगाना होता है। मैंने सोचा कि बात तो ठीक है, अभय सो रहा है, मैं धीरे धीरे अपना काम कर लेती हूँ। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू लगाने लगी। मोटी मोटी चीजें पहले ही उठा चुकी थी और अब पोछा लगा रही थी। जब मैं बिस्तर के पास से गुजरी तो अभय ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। मैंने उसे जगाने के लिए आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे ही गले में घुट गई।
वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी बिखरी हुई हालत संभाल कर बाहर निकली तो बड़ी मालकिन से टकरा गई। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है। मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसल गया था और मैं गिर गई थी। वो बोली कि एक तो तुम हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो, तुम्हारी माँ तुमसे में बड़ी थी लेकिन घर का सारा काम बहुत अच्छे से तरीके से करती थी, तुम्हें काम पर रखकर मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि तुम बार बार रोती रहती हो। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने उस राज को अपने भीतर ही दफन कर लिया, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। इस घर में एक और नौकर था जो घर का सामान लाया करता था और उम्र में मुझसे बड़ा था। मेरी माँ उसे भाई कहती थी और मैं उसे मामू कहती थी। उसने उस दिन मुझे देख लिया और बोला, बेटी तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या आप मेरे लिए कहीं और नौकरी तलाश कर सकते हैं? मुझे यहाँ काम नहीं करना। उसने कहा, बेटा यह घर बहुत अच्छा है, यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, बड़े घरों में तो बहुत लोग होते हैं और लोग ज्यादा हो तो काम भी ज्यादा होता है। फिर बड़ी मालकिन इतनी भी बुरी नहीं है, तुम जानती हो ना, दिल की बुरी नहीं है। मैंने कहा कि बस यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। वो बोला, बेटा दिल का क्या है, दिल तो दिल होता है, लगाने से लग जाता है। हम गरीबों का दिल कहाँ लगता है, हमारे लिए दिल लगाने को होता है क्या है, कुछ भी नहीं। हमें तो बस काम करना होता है। तुम भी काम किया करो और परेशान मत हुआ करो, काम में दिल लगा लिया करो, दिन अपने आप गुजर जाता है। मैंने कहा, दिन तो गुजर जाएगा, रात भी गुजर जाएगी और इसी तरह जिंदगी भी गुजर जाती है, मगर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, बेटी हर किसी का जिंदगी का कोई मकसद हो यह जरूरी नहीं। मैंने कहा, नहीं, हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। क्या हमारा मकसद बस इनके घर साफ करना, इनके बर्तन धोना और इनके रसोई घर साफ करना ही रह गया है? क्या हमारी अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं और ऊपर से ये हमें बातें भी सुनाते हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुस्सा किसी और बात का है, तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने फिर कहा, अगर कोई बात हुई है या दिल को कोई तकलीफ है तो मुझे जरूर बताओ। तब मैंने बस इतना कहा कि आप मेरे लिए कहीं और नौकरी का इंतजाम कर दें, चाहे वहां 10 लोग हों, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ, तुम परेशान मत हो, बात करके देखता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा लोगों से कोई मसला नहीं है तो उन्हें भी नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे लिए किसी और घर का इंतजाम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहती थी और उसके पीछे मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन अभी मैं वो वजह बता नहीं सकती थी। मुझे तब यह भी नहीं पता था कि किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, क्योंकि किस्मत बड़ी अजीब होती है। वो हमारे लिए वही काम चुन लेती है जो हमें नहीं आता और हमें उसी इम्तिहान में डाल देती है जिसकी हमने कभी तैयारी नहीं की होती, और वो इम्तिहान बहुत सख्त होता है। उसी तरह किस्मत ने मेरे लिए भी कुछ तय कर रखा था जिसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ लोगों के नसीब में गरीबी होती है, कुछ के नसीब में अमीरी, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि अमीरों की जिंदगी में मसले नहीं होते या गरीबों की जिंदगी में खुशी नहीं होती। हर किसी का अपना अपना नसीब होता है और यही नसीब अब मुझे भी कुछ दिखाने वाला था, कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत अजीब साबित होने वाला था। मेरी कहानियां बदलने वाली थी। एक दिन सुबह से शाम तक अभय साहब घर में दिखाई नहीं दिए, जिससे मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और मैंने सोचा कि कम से कम आज कुछ सुकून मिल जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा दबाव रहता था। लेकिन बड़ी मालकिन जल्द ही बेचैन और परेशान होने लगी। रात के 12 बज चुके थे और अभय अभी तक घर में वापस नहीं आया था। वैसे यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर रात को 2 बजे के करीब लौटता था, लेकिन उस दिन चिंता की बात यह थी कि उसका फोन भी बंद था। बड़ी मालकिन के चेहरे पर साफ फिक्र और खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई काम हो तो बता दें, वरना मैं जाकर सो जाऊं। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम सो जाओ, तुम्हारे जागने से वो जल्दी नहीं आएगा। मैं अपने क्वार्टर में आ गई और इतनी थकी हुई थी कि आते ही नींद आ गई, लेकिन अचानक शोर शराबे की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं फौरन उठी और बड़ी मालकिन के पास पहुंची।
जहां वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी और बेल पहले ही बजा दी गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, रात का वक्त है, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर बड़ी मालकिन ने अभय से मिलने की जिद की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनसे मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभय अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे और उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया है। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उन्हें तुरंत खून की जरूरत थी, मगर समस्या यह थी कि उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ था। पूरे अस्पताल में भी वो ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं था और डॉक्टर ने बताया कि यह ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है। यह सुनकर बड़ी मालकिन के चेहरे पर खौफ और हैरानी छा गई। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, फिर उसका कैसे पॉजिटिव हो सकता है? डॉक्टर ने बताया कि यह ब्लड ग्रुप उनके पिताजी का है, लेकिन वह बहुत दूर रहते हैं और उनके आने में कई दिन लग सकते हैं। जबकि अस्पताल ने साफ कह दिया कि 24 घंटे के अंदर खून का इंतजाम होना जरूरी है। बड़ी मालकिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में ना रहे। वो किसी तरह खुद को संभाल तो पाई, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उन्होंने कई लोगों को फोन किए, मगर हर तरफ से यही जवाब मिला कि हमने तो ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम भी नहीं सुना, इंतजाम कहाँ से करें। चारों ओर से इनकार ही मिला। बड़ी मालकिन ने अपनी सारी दौलत देने तक की पेशकश कर दी कि किसी तरह खून का इंतजाम हो जाए, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख और तरस आया। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर से कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। डॉक्टर हैरानी से पूछा कि आप कौन हैं? मैंने बताया कि मैं इस घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ। उन्होंने कहा कि यह इत्तेफाक भी नहीं हो सकता कि आपका ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, लेकिन मैंने जिद की, एक बार जांच तो कर लें। आखिरकार वे मान गए। थोड़ी देर बाद मेरा ब्लड ग्रुप चेक किया गया। बड़ी मालकिन अब भी बेहद परेशान थी, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आने लगी। यह पूरी स्थिति मेरे लिए भी बेहद कठिन और भावनात्मक थी। मैंने पहली बार बड़ी मालकिन की बेबसी और खौफ को इतनी गहराई से देखा था। एक बेटे की जान की चिंता, अपनी ताकत की सीमाओं का एहसास और चारों ओर से नाकामी, यह सब मुझे अंदर तक हिला गया। मैं समझ गई थी कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाता है, और वो लम्हा मेरे लिए भी वैसा ही था। बड़ी मालकिन हर तरफ से मायूसी और निराशा के साए में घिरी हुई थी। वो मेरा हाथ पकड़कर रो रही थी और उनकी आंखों में डर, बेबसी और विनती साफ झलक रही थी। मैंने उन्हें सहारा दिया और उनके साथ बने रहने की कोशिश की। तभी उसी वक्त डॉक्टर साहब कमरे में आए। उनके चेहरे पर राहत और सुकून की झलक थी। उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत है। बड़ी मालकिन की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी और उन्होंने घबराते हुए पूछा कि क्या खून का इंतजाम हो गया है? डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, इंतजाम हो गया है और यह वाकई एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यह सुनकर बड़ी मालकिन हैरान रह गईं और बोली कि कैसे, ब्लड ग्रुप कैसे मिला? तब डॉक्टर साहब ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके साथ खड़ी आपकी नौकरानी ही उस ब्लड ग्रुप की है जो आपके बेटे से मैच कर गया है। यह सुनकर मैं भी चौंक गई। मैंने तो बस यूं ही अपना ब्लड ग्रुप जांच करवाया था, लेकिन यह सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। बड़ी मालकिन ने तुरंत मुझसे कहा कि मेघा, मेरी मदद कर, मेरे बेटे की जान बचा लो, इनकार मत करना, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा कि मैं आपके बेटे की मदद नहीं करूंगी। बड़ी मालकिन ने हैरानी से पूछा कि क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? क्या दौलत चाहिए? तब मैंने कहा कि मुझे वो इज्जत चाहिए जो मुझसे छीन ली गई। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया वही वजह है कि आज उसकी जिंदगी मेरे एक फैसले पर टिकी है। ऐसे इंसान की मदद के लिए मैं अपना खून क्यों दूं जिसने मेरी इज्जत को रौंद डाला। बड़ी मालकिन ने कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा घर में काम करने वाली लड़की के साथ भी ऐसा कर सकता है। वो वाकई बहुत बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे मेहरबानी करने की गुहार लगाई और कहा कि तुम जो कहोगी मैं मानूंगी। मैंने कहा कि मेरी इज्जत मुझे वापस दिलवाइए। उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में वो सोचेंगी, बस अभी मेरी मदद कर दो। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। डॉक्टर साहब ने भी आगाह किया कि यह लड़की खुद भी कमजोर है, खून देने से इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद मामला तय हुआ और आखिरकार खून चढ़ा दिया गया। अभय की हालत अब खतरे से बाहर थी।
और पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। हालांकि मुझे खुद बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मुझे खून जल्दी बनने के लिए फ्लू ड्रिप्स और आयरन की ड्रिप लगाई गई। अच्छी खुराक दी गई और पूरे 1 महीने तक मेरी खास देखभाल की गई। अभय की भी पूरी तरह से देखभाल हो रही थी और हम दोनों ने लगभग सारा वक्त अस्पताल में ही गुजारा। घर के काम के लिए बड़ी मालकिन ने एक और नौकरानी रख ली थी ताकि मुझ पर ज्यादा बोझ न पड़े। 1 महीने के बाद हम दोनों घर लौट आए। अभय को अब तक यह मालूम नहीं था कि मैं उसके सारे राज जान चुकी हूँ। उसे बस इतना पता था कि मैंने उसकी मदद की है। उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था और वो मुझे देखते ही शुक्रिया और आभार जताता। उसकी आंखों में एक ऐसा बदलाव साफ नजर आता था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी और मौत के बीच के कुछ पल इंसान की पूरी तकदीर बदल देते हैं, और वही दिन मेरे और अभय दोनों के लिए ऐसा ही एक लम्हा था। मुझे क्वार्टर की जगह एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जब मैंने कहा कि मेरा तो क्वार्टर है, तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अब वहाँ दूसरी नौकरानी रहती है और मुझे इस कमरे में इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे आराम की जरूरत है। उनके बोलने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया था और अब उनके लहजे में मेरे लिए प्यार और इज्जत साफ झलक रही थी। जब मैं कमरे में गई तो वहाँ मेरे लिए नए कपड़े, जूते और दूसरी चीजें जरूरी रखी थी। उन्होंने कहा कि यह सब मेरे लिए है क्योंकि मौसम बदल रहा है, जबकि इससे पहले वो कभी ऐसा नहीं सोचती थी और हमेशा अपने पुराने कपड़े ही मुझे दे देती थी। इसके बाद मैं 10-15 दिन तक वहीं रही और मैंने घर का कोई काम नहीं किया क्योंकि बड़ी मालकिन ने साफ कह दिया था कि मुझे कोई काम नहीं करना है। 1 महीने की सेवा और उसके बाद 15 दिन के पूरे आराम का असर यह हुआ कि मेरी शक्ल सूरत ही बदल गई। मैं पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। मेरे हाथ पांव बिल्कुल साफ हो गए थे और मैं खुद को देखकर हैरान थी। तभी मुझे समझ आया कि अमीर लोग अच्छी खुराक खाते हैं और पूरा आराम करते हैं, इसलिए उनकी शक्ल सूरत ऐसी निखरी हुई होती है। लेकिन एक रात मैंने कुछ आवाजें सुनी। अभय के कमरे से बड़ी मालकिन और उसकी बातें सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी। बड़ी मालकिन कह रही थी कि घर में काम करने वाली लड़की की इज्जत पर हाथ डालते हुए उसे शर्म क्यों नहीं आई। अभय ने कहा कि उसे सब कुछ ठीक से याद नहीं क्योंकि वो नशे में था। इस पर बड़ी मालकिन ने गुस्से में कहा कि अब वो नशा भी करने लगा है और नशे का बहाना बनाकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो लड़की उस वक्त पुलिस के पास चली जाती और शिकायत कर देती तो क्या होता? वो उसे फिर से बचा तो लेती, लेकिन वो लड़की याद है जो उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई थी। उसने बहुत दिल दुखाए हैं और इसकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। उसे खुद को बदलना होगा। यह सुनकर अभय रोने लगा और बोला कि वो सच में खुद को बदलना चाहता है। तब बड़ी मालकिन ने कहा कि अब उसे उनकी एक बात माननी होगी और उस पर अमल करना होगा, और वो उसके मुंह से सिर्फ हाँ सुनना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहने वाली है और ना ही मैं, लेकिन जैसे ही बड़ी मालकिन ने वह बात कही, मैं दरवाजे से ऐसे पीछे हटी जैसे मैंने अपनी मौत का ऐलान सुन लिया हो। मैंने अभय का जवाब भी नहीं सुना और सीधे अपने कमरे में आ गई। सुबह बड़ी मालकिन अपने हाथों से नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में आई और मुझे पहले से पता था कि वो मुझसे क्या बात करने वाली हैं। उन्होंने बड़े प्यार और सम्मान से मुझे नाश्ता खिलाया और उनके व्यवहार में एक अजीब सी मोहब्बत और अपनापन था। फिर उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मेरी शादी अभय से हो जाए। मैं हैरान रह गई और रुककर उनकी आंखों में देखने लगी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रही हैं? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुमने कहा था ना कि क्या तुम्हारी इज्जत वापस आ सकती है? तुम्हारी इज्जत इसी तरह वापस आ सकती है। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्या वो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगा, मुझे इज्जत देगा? बड़ी मालकिन ने नरमी से जवाब दिया कि अब वो बहुत बदल चुका है, मौत के मुंह से निकल कर आया है। मैंने पूछा, क्या आपने उससे पूछा है? वो बोली, हाँ मैंने पूछा, वो तैयार है। बल्कि वो तो यह भी कह रहा था कि अगर मेघा इनकार करे तो भी उसे कोई मसला नहीं होगा, बस वो यह बात याद रखेगा कि किसी ने उससे इनकार किया है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरे लिए यह सब कितना मुश्किल है। बड़े मालकिन ने मेरी सोच पढ़ ली और कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम सारी जिंदगी नौकरानी बनकर रहना चाहती हो? देखो, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। यह घर तुम्हारा घर हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई। फिर वो बोली, तुम्हें पता है, अभय के पिता ने अभी तक मेरा संदेश नहीं देखा है।
मुझे किसी ने बताया है कि वो शादी कर चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। बस हमारा एक ही ताल्लुक रह गया है कि वो हर महीने पैसे भेजते रहें। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ कि कम से कम मुझे सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी पड़ेगी। बड़े मालकिन ने मोहब्बत और यकीन के साथ कहा, मेरी बात मान लो। मैंने लंबी सांस ली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आखिरकार मैंने हाँ कह दी। लेकिन भीतर ही भीतर डर था। मैं सोच रही थी कि यह रिश्ता जो ऐसे जुड़ गया है, इसका अंजाम क्या होगा। आजकल तो जो लोग बहुत मोहब्बत से रिश्ता जोड़ते हैं, उनका भी अंजाम बुरा निकलता है। मैं अपने दिल की धड़कन सुन रही थी और सोचती रही कि जिंदगी वाकई कभी कभी कितनी अस्थायी और गैर यकीनी हो जाती है। मैंने बड़ी मालकिन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सुकून और विश्वास की झलक थी। उनकी निगाहों में यह एहसास था कि उन्होंने मेरा हक अदा किया है और मेरे साथ इंसाफ किया है। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू छिपाए और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। दिल में एक अजीब सी हिचकी थी और डर और उम्मीद दोनों एक साथ मुझे जकड़े हुए थे। मुझे आभास हो गया था कि आज से मेरी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ेगी। यह रास्ता अनिश्चित होते हुए भी अपने साथ एक उम्मीद लेकर आया था। अभय के साथ मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और यह सब कुछ सिर्फ 1-2 हफ्तों में पूरा हो गया। बड़ी मालकिन चाहती थी कि इस मौके पर ज्यादा लोग न हों, क्योंकि मुश्किल समय में किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। समारोह छोटा था, लेकिन मेरे लिए हर चीज खास तौर पर तैयार की गई थी। लिबास, जेवरात और हर छोटा बड़ा सामान इस तरह सजाया गया था कि तस्वीरें बेहतरीन आए। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो दुल्हन बनकर अपनी सूरत में एक नई जिंदगी की झलक महसूस हुई। शादी के समय पूरा माहौल गंभीरता और सम्मान से भरा था। सब कुछ खामोशी और गरिमा के साथ हो रहा था। अभय सिर झुकाए बैठा था, जैसे वो वही अभय न हो जो पूरे घर में अय्याशियों और बेफिक्री के साथ रहता था। उसका चेहरा नीचे झुका, खामोश और अजीब सा मासूम लग रहा था। उम्र भर के रवैयों के बाद यह रूप बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्चाई दिख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान थी कि इतने बड़े आदमी की शख्सियत में यह नरम कोना कैसे छिपा रहा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। हर कदम पर दिल धड़क रहा था। कपड़ों की खुशबू, जेवरात की चमक और दिल की बेचैनी एक साथ घुल रही थी। कमरे में बैठकर मैंने खुद से कहा कि आज से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। लेकिन दिल के भीतर एक डर भी बैठ गया था। यह डर मुझे बताता था कि अभय अभी भी पहले जैसा ही हो सकता है, और फिर भी अपनी मौजूदा हालत में मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मेरे दिल में नकारात्मकता और शक की लहर उठ रही थी। इतने दिनों की नौकरानी की जिंदगी के बाद आज मैं उसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में बंधी थी जिसने कभी मेरे जज्बात और सम्मान को कुचला था। मैंने खुद से कहा कि आज रात का लम्हा ही सब कुछ तय करेगा। कहते हैं उसी रात यह फैसला हो जाता है कि रिश्ता कैसा होगा और किस दिशा में बढ़ेगा। मैंने दिल की धड़कन को संभाला, लेकिन भीतर एक सवाल और डर लगातार मेरे जहन में घूमता रहा। मुझे पूरा यकीन था कि उसकी सोच और रवैया भी आज रात स्पष्ट हो जाएगा। कमरे में बैठी मैं बस यही सोच रही थी कि शायद अब उसकी असलियत सामने आएगी। मैंने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि आज की रात मेरी जिंदगी का सबसे अहम और निर्णायक क्षण साबित होगी। मेरे मन में आशंकाएं भरी हुई थीं और हर सांस के साथ यह एहसास और गहरा होता जा रहा था कि इस रात के बाद मेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी मैं खामोशी से बैठी आने वाले पल का इंतजार कर रही थी। तभी अभय कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। उसके कदम शांत थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने मुझे नमस्ते किया और मैंने भी जवाब में नमस्ते कहा। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें सोने की अंगूठी रखी थी। उसने वह अंगूठी मुझे पहनाई और फिर धीरे से मेरा घूंघट उठाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सम्मान झलक रहा था। उसने कहा कि वह मुझे 2 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता है, एक मेरी जान बचाने के लिए और दूसरा मुझसे विवाह करने के लिए। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और मुस्कुराकर बोली कि मैं भी उसे धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझसे शादी की। वो हल्का सा हंसा और बोला कि उसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके जैसे इंसान से कोई शादी नहीं करता।
اور اگر میں نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید وہ زندہ بھی نہ ہوتا۔ یہ سن کر میں نے من ہی من سوچا کہ یہ وہی ابھے ہے جو پہلے اپنے ویوہار سے سب کو پریشان کرتا تھا اور آج اتنی نرمی اور سنویدنا دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ مجھے خوش رکھے اور جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہوگا۔ اگر مجھے سمے چاہیے تو وہ دینے کو تیار ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں مجھے سمے چاہیے، تو وہ مسکرایا اور بستر کے دوسری اور سکون سے لیٹ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہی وہی انسان ہے جس کے ویوہار میں کبھی غصہ اور بے رخی تھی۔ آنے والے دنوں میں ہماری زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ ہمارا ملن ہوا اور گھر میں کچھ دعوتیں بھی دی گئیں۔ ہر دعوت میں ابھے میرا پورا دھیان رکھتا اور جب ہم مہمانوں سے ملتے تو وہ ہر پل میری اور دیکھ کر یہ احساس دلاتا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کبھی ہم باہر پارک میں ٹہلنے جاتے تو وہ مجھے آرام سے سیر کراتا اور چھوٹے چھوٹے سکھد پل دیتا۔ اس کی اسنیہلتا اور چنتا نے مجھے چکت کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوئیں جہاں ہم گھومنے پھرنے گئے۔ ایک دن ہم نے پاس کی جھیل کے کنارے پکنک منائی۔ میں پیڑوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اور ابھے میرے پاس آ کر گمبھیرتا سے بیٹھ گیا۔ میری ہر بات دھیان سے سنتا اور میری اچھا کے انوسار ہی کرتا۔ اگلے دن ہم پاس کے باغ میں گئے اور پھولوں کی خوشبو کے بیچ باتیں کی۔ اس نے میرے لیے چھوٹے چھوٹے بہار خریدے اور میری پسند کے پھول اپنے ہاتھوں سے توڑ کر مجھے دیے۔ ہر دن اس کا ویوہار پہلے سے ادھک بہتر، سنویدنشیل اور اسنیہ پورن ہوتا چلا گیا۔ میں نے خاموشی سے اسے سنبھالا اور اس کی اور دیکھا۔ وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ کیا وہی ابھے ہے جو پہلے گھمنڈ اور بے پرواہی کی مثال تھا، لیکن آج وہ اپنے کرموں کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ اس رات میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کروں گی۔ حالانکہ اس کا ویوہار ابھی بھی پوری طرح میرے سامنے کھلا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے تھوڑا دور دور رہتا اور کہتا کہ سچ کہوں تو وہ میرے قابل نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ جو ہو چکا ہے اسے بھول کر ہم ایک نئی شروعات کریں۔ میرے شبد سن کر اسے سکون ملا اور پہلی بار ایسا لگا کہ وہ بھیتر سے سنتشٹ اور خوش ہے۔ وہ میری اور دیکھتا اور اس کی آنکھوں میں پچھلی غلطیوں کی مایوسی کے بعد شانتی کی جھلک صاف دکھائی دیتی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ زندگی واقعی بدل سکتی ہے اگر انسان دل سے اپنی غلطیوں کو سویکار کرے اور اپنے جیون میں سکاراتمک بدلاؤ لانے کی کوشش کرے۔ میں نے ابھے کو پاس بلا کر کہا کہ اب ہم سب کچھ ساتھ مل کر شروع کریں گے۔ اس نے سر ہلا کر سہمتی جتائی اور پہلی بار مجھے لگا کہ اس کا ویوہار سچ میں بدل چکا ہے۔ وہ اپنے جیون کے غلط دوستوں اور خراب ماحول سے خود کو الگ کر چکا تھا، اپنی زندگی کی قدر کرنے لگا تھا اور ہر کام میں ساودھانی برتنے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا بلکہ حالات اس کی شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے سر پر پتا کا سایہ نہیں تھا، ضرورت سے زیادہ پیسہ اس کے پاس تھا اور اس کے دوست و ماحول اسے بگاڑ رہے تھے، لیکن جب اس نے بدلنے کا فیصلہ کیا تو وہ بہت خوبصورتی سے بدلا۔ اس کا ویوہار، سوچ اور احساس سب کچھ نیا اور سکاراتمک ہو گیا تھا۔ میں اس کی نگاہوں میں شک اور محبت محسوس کر رہی تھی۔ ہم دن بدن ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ ہر صبح وہ پہلے اٹھتا اور میرے لیے چائے بناتا۔ ہم ساتھ صبح کی روشنی میں ٹہلنے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشیاں تلاش کرتے۔ کبھی ہم بازار جاتے اور وہ میری پسند کی چیزیں خریدتا، کبھی پارک میں بیٹھ کر خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ ہر دن ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس کراتا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ ابھے واقعی بدل گیا ہے اور ہماری زندگی کے نئے دن محبت، بھروسہ اور سکون کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ جو انسان پہلے اپنے ویوہار سے سب کو پریشان کرتا تھا وہ اب میری خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور اس کی دیالوتا اور خیال مجھے اندر سے پوری طرح پربھاوت کر رہے تھے۔ میں نے بڑی مالکن کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ وہ بھی اب خوش تھی کہ ان کا بیٹا صحیح راستے پر ہے اور میں بھی خوش تھی۔ وہ اکثر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری باتیں سنتی اور ہمیں صلاح دیتی۔ کبھی کبھی وہ مسکرا کر کہتی کہ دیکھو تم دونوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں اندر ہی اندر شکر گزار ہوتی اور سوچتی کہ واقعی بھگوان نے میری زندگی بدل دی ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات بھی محبت اور بھروسہ سے بھر گئے۔ ابھے ہمیشہ میری مدد کرتا، میرے لیے چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے لمحے پیدا کرتا اور میرے جذبات کا خیال رکھتا۔ میں بھی اپنی زندگی کی ہر گھڑی اس کے ساتھ خوشی سے گزارتی۔ میں نے محسوس کیا کہ جوش اور محبت کا آغاز اتنی دیر بعد بھی قائم رہ سکتا ہے اگر انسان دل سے اپنی ذمہ داری اور وشواس کو سمجھے۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں اور ہماری زندگی میں کچھ نہیں بدلا۔ ابھے وہی ہے
जो मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता है। अब मैं माँ बनने वाली हूँ और यह खुशी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी है और मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मैं हमेशा अपने दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ कि भगवान ने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मेरी इज्जत, खुशी और सुकून के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करती हूँ कि हर लम्हा कदर करने वाला होना चाहिए। हर दिन मैं अभय की निगाहों में मोहब्बत देखती हूँ और उसके हर अमल में फिक्र और आदर महसूस करती हूँ। हम दोनों अब एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन चुके हैं। मैं समझ गई हूँ कि जिंदगी कभी कभार इंसान को परीक्षा में डालती है और फिर वही परीक्षा इंसान को सही रास्ते पर ले आती है। मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग इसलिए बुरे नजर आते हैं क्योंकि हालात, माहौल और तरबियत उन्हें बदल देती है। लेकिन अगर दिल में नेकी और मोहब्बत की रोशनी हो तो वे कभी न कभी अपने आप को बदल ही लेते हैं। अभय के बदलाव ने मुझे सिखाया कि हर इंसान में बेहतरी की गुंजाइश होती है और मोहब्बत, सब्र और विश्वास के साथ वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हमारी जिंदगी एक खूबसूरत मामून में बदल चुकी है। हर सुबह मैं उठकर उसकी मुस्कुराहट देखती हूँ और दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी नहीं सोचती कि मैं हमेशा एक नौकरानी बनकर गुजार दूंगी, क्योंकि भगवान ने मेरी दुआ का जवाब दे दिया था और मेरी जिंदगी को इज्जत, खुशी और मोहब्बत से भर दिया था। यह सब कुछ देखकर मुझे महसूस होता है कि जिंदगी में हर इम्तिहान और हर मुश्किल का एक हल और खुशी का लम्हा छुपा होता है जो सब्र और ईमान के साथ इंसान के सामने आता है। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नई जिंदगी की तैयारी कर रही हूँ। हर दिन अभय मेरे साथ अपनी मोहब्बत और ख्याल का इजहार करता है। कभी कभी मैं उसके चेहरे को देखकर सोचती हूँ कि कैसे वो शख्स जो पहले सिर्फ अपनी खुशी और बेफिक्री में व्यस्त था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और खुशी का सबब बन गया है। मेरी जिंदगी के ये 3 साल इतने खूबसूरत और यादगार हैं कि मैं हर दिन भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अब जानती हूँ कि वाकई जिंदगी में मुश्किलात के बाद सुकून, मोहब्बत और खुशी आती है और जो शख्स दिल से बदलने की कोशिश करता है उसके लिए हर चीज मुमकिन है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्ट्रगल ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।